مجھے وہ دن ابھی تک یاد ہے کلیئرلی کہ اندر سے کچھ آواز آئی گاڑی رکنے کی تو میں باہر نکلی تو مائی فادر واز اسٹیپنگ آؤٹ آف دا کار اینڈ ہی لکڈ ویری اپسیٹ. ان کا بات کیا ہوا ہے؟ کہتا ہے شاکر ہیز پاسڈ آن. شاکر صاحب کا اور فیض صاحب کا ایک عجیب سا رشتہ تھا. نہ وہ بولتے تھے نہ وہ بولتے تھے اور گھنٹوں بیٹھتے تھے ساتھ گھنٹوں. اور شاکر صاحب was one of the most genius painters and artists of Pakistan and lovely man, so gentle, so quiet. اور ظاہر ہے آپ لوگ جو لاہور میں رہتے ہیں آپ کو پتہ ہے شاکر علی میوزیم بنا ہوا ہے. That is his house that he lived in and it is so typical of him. Different, all creative. خیر وہ تو نیر علی دادا کا کمال ہے لیکن beautiful place, peaceful like Shakir himself. تو یہ ایک دوسری پورٹریٹ تھی جو مجھے شوق ہوا اور میں نے شاکر صاحب کی پورٹریٹ بنائی. اور مجھے آج بھی یاد ہے اس رات کھانا تھا کہیں جب یہ رات کو چلی ہے پی ٹی وی پہ کہیں کھانا تھا. میں کھانے میں ہم گئے تھے تو وہاں پہ آغا ناصر صاحب واز آر ڈائریکٹر پروگرامز ایٹ دیٹ ٹائم. اور جب ہم کھانا کھا رہے تھے تو کہنے لگے بھائی میزو, وہ مجھے میزو ہی کہتے تھے پیار سے, بھائی کمال کی بنائی ہے تم نے, کیونکہ شاکر سب کے دوست تھے. تو کہنے لگے بھائی تم نے کمال کی ڈاکیومنٹری بنائی ہے, آج ابھی ہم دیکھ کے آ رہے ہیں. I have never forgotten that comment. It was such an honor to have received that comment from somebody who I looked up to, admired, and of course he was my boss. So ladies and gentlemen, portrait Shakir Ali by Maniza Hashmi. انہوں نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ آرٹسٹ تو ہرن کی طریقے سے ہوتا ہے, جیسے کہ ہرن جو ہے اپنے نافے میں مشک لیے پھرتا ہے اور ایک حیران اور صحرا میں گھومتا پھرتا ہے, بس ایسے آرٹسٹ ہوتا ہے. اور میرے خیال میں شاکر صاحب بھی تھے جو وہ امن کے پجاری تھے, اور ان کا اگر ان کی اپنی زندگی اور ان کا نظریہ جو تھا وہ انسان دوستی کا تھا. اور پھر وہ لمحے بھی تھے جب نہ کوئی سننے والا تھا اور نہ کوئی سنانے والا تھا. گھنٹوں ہوتے تھے کہ شاکر صاحب کے گھر ہم شاعر لوگ لکھنے والے بیٹھے ہیں, شاکر صاحب بیٹھے ہیں, کوئی گفتگو نہیں کر رہا, لیکن ایک کمیونیکیشن کا وہ لمحہ ہوتا تھا کہ محسوس ہوتا تھا کہ ہم یہاں سے اٹھ بھی نہیں سکتے. دوسری جو ایک وہ ہمیں ایجوکیٹ کرتے تھے, وہ اپنا جو نیا کام ان کا ہوتا تھا, جو لیٹسٹ کام وہ کرتے تھے, تو ہم صبح آ کر دیکھتے کہ ہمارے آنے سے پہلے اسٹوڈیو میں ان کی وہ پینٹنگز لگی ہوتی تھی. تو اس سے پورا ایک تو اسٹوڈیو کا ایٹماسفیئر چینج ہو جاتا تھا اور ہم سب لوگ گھنٹوں اس تصویر کو دیکھتے تھے اور اسے تو کوشش کرتے تھے کہ اسی طرح ہم بھی کچھ پینٹ کریں. دو اسٹوڈنٹ تھے, ایک ڈرائنگ میں بہت اچھا تھا, ایک خراب. جو اسٹوڈنٹ اچھا تھا اس نے کہا کہ شاکر صاحب وہ تو جس کی ڈرائنگ بڑی خراب تھی اس کو آپ نے پاس کر دیا, مجھے فیل کر دیا. تو انہوں نے کہا اچھا تو اگلی دفعہ اس کو فیل کر دیں گے. تو کہنے لگے لیکن میں صرف تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی فن کے حوالے سے کوئی شارٹ کٹس نہیں ہوتے, تو اس میں کبھی اپنے آپ کو اس سے دور رکھنا اور اس سے محفوظ رکھنا. شاکر علی کے متعلق یہ کہنا ضروری ہے کہ وہ ایک ایسے آرٹسٹ تھے جو محض ایبسٹریکشن میں بلیو نہیں کرتے تھے بلکہ ایبسٹریکشن آف ریالٹی میں بلیو کرتے تھے. شاکر علی کو سمجھنے کے لیے ایک ایسے انسان کو سمجھنا ضروری ہے جس کو اپنی شروع زندگی سے
اپنی ڈیسٹنی پر ایک قسم کا کانفیڈنس اور ایک قسم کی ایک یقین ہوتا ہے کہ اس نے آگے جا کے کچھ کام کرنا ہے. تو شاکر صاحب بس بڑھیا آدمی تھے اور اب کم لوگ نظر آتے ہیں اس قسم کے کہ آپ ان پہ ٹوٹلی ڈپینڈ کر لیں. اب نہیں کوئی نظر آتا. یہ مکان ایک ایسا کینوس، ایک ایسا فن پارہ ہے جس میں کبھی ایک آرٹسٹ زندگی بسر کرتا تھا. اس کا ہر دروازہ، ہر کھڑکی، ہر سیڑھی، ہر اینٹ، حتیٰ کہ اس کا فرنیچر بھی اس فنکار کے ایک عظیم تجربے کا آئینہ دار ہے. یہ تجربہ مختلف اسالیب اور متضاد تقاضوں کے امتزاج کا تجربہ تھا. اس تجربے سے جو نتیجہ برآمد ہوا، جو چیز معرض وجود میں آئی، اس میں ندرت بھی تھی اور تازگی بھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ برمحل اور معاصر تقاضوں سے ہم آہنگ تھی. یہ آرٹسٹ شاکر علی تھے، جن کو پاکستان میں جدید آرٹ کے بانیوں میں سے ایک ہونے کا اعزاز حاصل ہے. شاکر علی کے آنے کے بعد ہمیں سیزان کا، پکاسو کا، براک کا، پال کلے کا پتہ چلا، اور ہم نے کتابیں پڑھنا اور نئے طریقے سے سوچنا اور دیکھنا شروع کیا. تو اس سینس میں شاکر علی کا رول ایک بہت امپورٹنٹ، یہ ہسٹری کے ایونٹس ہیں جس میں کچھ لوگ آ کر شاکر کی طرح، روشن آرا بیگم کی طرح، فیض احمد فیض کی طرح بڑے اہم مقام حاصل کر لیتے ہیں. شاکر صاحب کی وجہ سے یہ ماڈرن آرٹ کی ایک قسم کی مقبولیت سی ہو گئی لاہور میں. اس سے پہلے تھے کئی مصور جنہیں ماڈرن آرٹ سے دلچسپی تھی، لیکن جب تک کہ شاکر صاحب لاہور نہیں آئے تھے تو اس ماڈرن آرٹ کو بطور تحریک کہنا ممکن نہیں تھا. انہوں نے جو ایک تحریک دی ہے، وہ تحریک اس سینس میں ایک اسکول کے طور پہ نہیں ہے کہ لوگ اس کی تقلید کر رہے ہیں، بلکہ اس تحریک کی نوعیت یہ ہے کہ لوگ اپنا اپنا راستہ تلاش کریں. اور ان کی کوشش بھی یہی تھی کہ جو بھی ان کے طلباء یا ساتھی ہوں وہ ان کی شخصیت یا ان کے اسٹائل کے زیر اثر نہ ہوں، بلکہ اپنے طور پہ اپنا ایک وجود رکھتے ہوں یا قائم کریں. شاکر علی نے پاکستان میں جتنے عرصے کام کیا وہ 20-22 سال سے زیادہ نہیں، لیکن اس مختصر سی مدت میں انہوں نے ایک پینٹر اور ایک استاد کی حیثیت سے آرٹ کی دنیا میں انقلاب برپا کر دیا. انہوں نے پاکستان کی نوزائیدہ ریاست میں آرٹ کو ایک واضح شناخت عطا کی جو آج تک برقرار ہے، اور فنکاروں کی ایک پوری نسل ذہنی رہنمائی کے لیے شاکر علی کو ہی یاد کرتی ہے. میرا خیال تخلیقی عمل جو ہے، جو 3 چیزوں کا متعلق ہے، عبارت ہے. ایک وجدان، پھر دوسرا ادراک، اور دوسرا اقتصاد اور ریاض. اقتصاد اور ریاض کو میں ساتھ رکھتا ہوں. تو ادراک حاصل کرنے سے پہلے آدمی کو وجدان کی ٹٹولنا پڑتا ہے کہ اس میں وہ وجدان ہے یا نہیں. اور وجدان ظاہر ہے کہ ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ایک مرتبہ پیدا ہو جائے اور اس کے بعد پروان نہ چڑھے. پہلے وہ جذبہ تلاش کرنے کے بعد
आर्टिस्ट या अदीब या शायर, आप सब शायर हैं, अदीब हैं, तो आप मुझसे इत्तेफाक करें या ना करें, मैं एक तो देन होती है जिसे कहते हैं, पैदा आदमी होता है, लेकिन उसके बाद कॉन्शियसली उसको टटोलने के बाद अपना मुकाम पैदा करता है, फिर साथ साथ उसके साथ भी करता है, फिर उसके महज एक्सप्रेशन की जो उसको लगन होती है उसके वास्ते अपना मीडियम तलाश करता है। वो मीडियम है उस आदमी के दायरे के मैं पेंटर हूँ, मैं शायर नहीं हो सका, तो वो ये कि जिस तरह से एक शायर का मिजाज, फनकार का मिजाज है, इसी तरह से वो दूसरा मीडियम ही तलाश करता है, वो अपने मिजाज के लिहाज से करता है कि, और मैं तो ये कहूँगा, और मैंने पहले भी अर्ज किया है कभी, कि फनकार खुद एक मीडियम है और दूसरा मीडियम फनकार या अल्फाज के साथ मीडियम या रंग के साथ जो उसका इजहार है। शाकिर अली से कबल पाकिस्तान में फ़नून लतीफ़ा, डिज़ाइन और फ़न तामीर तमाम के तमाम गहरे तजाद का शिकार थे। एक तरफ कट्टर रिवायत पसंदी थी जो लोगों के बदलते हुए रवैयों और तग़य्युर पज़ीर तर्ज ज़िंदगी की जानिब से बिल्कुल गाफिल थी, और दूसरी जानिब मगरिब के जदीद असालीब की अंधी तकलीद थी जो अपने मुल्क के तर्ज ज़िंदगी के मखसूस तकाज़ों को नज़रअंदाज किए हुए थी। एक असूब में तनव्वुर, ताजगी और नुदरत बिल्कुल नापैद थी, और दूसरा असली तकाज़ों और हक़ाइक़ से दूर और लाताल्लुक़ था। लेकिन शाकिर अली ने आकर काया ही पलट दी। उन्होंने दोनों असालीब के बेहतरीन अनासिर का इंतखाब किया और उनकी तालमेल से एक बिल्कुल नई और नादिर चीज तख्लीक की। पिकासो से शायद किसी ने सवाल किया कि जब चिड़िया गाती है तो कितने लोग उसको समझते हैं, तो समझने से ज्यादा उसको महसूस करने और उससे कैफ हासिल करने की कोशिश करना चाहिए। उसके वास्ते जिस तरह से शायर एक मीडियम है, शायर और पेंटर, तो इसी तरह से एक दूसरा मीडियम वो है कि उस तक एक देखने वाला, तो उसको भी उतनी तरबियत की जरूरत है जितनी एक फनकार को है। शाकिर साहब का जो एक खास नजरिया था उसमें एक तो बात थी ये कि नौजवान मुसव्विर को अपनी ज़ात को मुस्तहकम करना, अपनी इनफरादियत को मनवाना है, पहली तो ये बात थी। दूसरी बात ये कि वो जो मुसव्विर था उसको जहाँ पे जिस सरजमीन पे उसके पांव गड़े हुए हैं उसका एहसास, यानी कि पूरे एक बड़े सगीर की जो एक फ़नी और मुसव्वरी की जो तारीख़ है उसका एहसास, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, वो लोक विरसा पूरा, मौसीकी, ड्रामा, थिएटर, जो कुछ भी है, शायरी, अदब, इन सब चीज़ों का हिस्सा, उसकी ये जो एक उसका जो तारीख का एक पस मंज़र है उसका एहसास। और तीसरी चीज़ जो इस नज़रिए में शामिल थी वो शाकिर साहब का एक ह्यूमनिज़म का पहलू था, यानी कि जो मुसव्विर है उसका ताल्लुक़ अपनी ज़ात से और अपनी एक सरजमीन से और फिर एक पूरी कायनात से, जिसमें वो इंसानी बरादरी जो है उसका वो एक हिस्सा है। आर्ट के मैदान में उनकी खिदमात के एतराफ़ के तौर पर शाकिर अली को 1967 में हुस्न कारकर्दगी का अवार्ड और बाद अज़ां 1971 में सितारा-ए इम्तियाज दिया गया। रवायत और जिद्दत का ये हसीन मुरक्कब तैयार करने के लिए शाकिर अली मौजू तरीन शख्स थे। वो 1916 में उत्तर प्रदेश में पैदा हुए और एक ऐसे माहौल में परवरिश पाई जिसमें जदीद अक़दार पुराने फरसूदा निज़ाम को चैलेंज कर रही थी और जिसमें सकाफती शनाख्त को कायम रखना एक बहुत अहम मसला बना हुआ था। वो अपने दौर के दानिश्वरों के जदीद रुझानात से बहुत मुतासिर थे, चुनाचे उन्होंने जवानी में जो अफसाने लिखे थे उन पर अदब की तरक्की पसंद तहरीक की छाप नुमाया नजर आती है। शाकिर अली ने वकील ब्रदर्स स्टूडियोज नई दिल्ली और जे स्कूल ऑफ आर्ट्स बंबई में 10 बरस तक ड्राइंग और पेंटिंग की बुनियादी तरबियत हासिल की और चार्ल्स येराल्ड की निगरानी में म्यूरल डेकोरेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हासिल किया। शाकिर अली ने 10 बरस की इस तवील तरबियत पर ही इक्तफा नहीं किया और मजीद मुताले के लिए यूरोप चले गए।
उन्होंने वहां 5 बरस क़याम किया और उस मुद्दत के एक एक लम्हे को तजर्बात के एक वसी और गैर मामूली सिलसिले में सर्व किया। उन्होंने लंदन में आर्ट के मशहूर दरसगाह स्लेट स्कूल ऑफ आर्ट्स में 3 बरस तक फनून लतीफ़ा का मुताला किया। फिर जनूबी फ्रांस में नामवर क्यूबिस्ट पेंटर्स के साथ काम किया और फिर उसके बाद चेकोस्लोवाकिया जाकर प्राग में टेक्सटाइल डिजाइन का मुताला और अमली तजुर्बा हासिल किया। जब मैं यूरोप गया था तो बिल्कुल मैं मुमस नहीं था। मैं कुछ ख्यालात लेके गया था, कुछ असरात लेके गया था। यूरोप में समय पहले लंदन पहुंचा। लंदन का शहर जो आपको मालूम है बहुत ही गैर दोस्त शहर मशहूर है, जो अजनबियों को काफ़ी अरसे के बाद कबूल करता है। एक बात मुझे नहीं भूलती कि शाकिर के साथ दोस्ती का एक और एक पाबंद जो साथ लग गया बहुत ज़बरदस्त, वो ये था कि उनको पैसे आते थे भोपाल से, उनके वालिद भेजते थे और उसी में वो गुजारा करते थे। इत्तेफाक से एक दो वो नहीं आए तो उनकी हालत बड़ी ख़राब हो गई, पैसे वैसे ख़त्म हो गए। इधर मेरा ये हाल था कि बीबीसी में काम मिल नहीं रहा था उन दिनों, तो मेरे भी पैसे ख़त्म हो गए। तो हम एक दो दिन तो फाकों में गुजारे हमने। फिर हमने सोचा कुछ करना चाहिए, चुनाचे हम दोनों को इनकलाबी बन के हमने कहा कि हम चल के कहीं मुलाजमत कर लेते हैं। तो वो और मैं, मुझे याद सर्दियों की सुबह थी, कुछ 4 साढ़े 4 होंगे, जब हम फैसला किया कि हम कम्बरलैंड होटल में चलते हैं, सुबह सुबह देखते हैं वो मुलाजमतें। तो वो ऑक्सफोर्ड सर्कस में था कम्बरलैंड होटल, हम वहाँ पहुँचे तो हम दरवाजे के बाहर, शाकिर की हालत देखने वाली थी, इस कदर नर्वस था, मैं भी बड़ा नर्वस था। तो वो कहा पहले तुम दरवाजा खोलो, मैं खोलूं। इतवार से मैंने फिर खोला और फिर हम गए अंदर। तो वो जो आदमी बैठा था वहाँ, उसने हमारी तरफ देखा और उसने शक्ल देखी, शक्लें देखी और कहा कि काहे के लिए आए हो? हमने कहा जी यहाँ मुलाजमत करने आए हैं। ये डिश वॉशिंग कर लोगे? हमने कहा हम करेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं तुम नहीं कर सकते। हमने कहा कि नहीं हम कोशिश तो करेंगे। फिर वो सोचे में पड़ गया। फिर कहा लगा अच्छा कुछ दिनों के बाद आना तो मैं फिर तुम्हें मुलाजमत दूंगा। तब उसी तरह बेनीलो मराम वापस आए और वापस आके हम मायूसी की हालत में जा रहे थे। कोई दोस्त मिल गया इत्तेफाक से, उसने मैं नाश्ता वाश्ता बड़ा अच्छा कराया, विदाउट आस्किंग फॉर इट नाश्ता कराया। और शाम को मुझे बीबीसी ने मुलाजमत दे दी और वो जो मुश्किल थी वो टल गई। वो 1952 में पाकिस्तान आए तो उनका जहन नए नए तस्वुरात से मालामाल था, लेकिन जेब बिल्कुल खाली थी। पाकिस्तान आने के बाद मैंने ये महसूस किया कि मैं ऐसे सरजमीन में आया हूँ जिसमें मुझे कुछ अर्सा रहना है और अपना फन और अपने दोस्त पैदा करना है। जब मैं पाकिस्तान आया 1952 में, उस वक्त मुझे कोई नहीं जानता, लेकिन मैं ये समझ कर आया था कि ये मेरी सरजमीन है, जहाँ मुझे तकलीफ के अमल करना है और साथ साथ अपने दोस्त पैदा करना है। शाकिर के हालात काफ़ी ख़राब थे इस लिहाज से कि उन्हें पैसे की तंगी थी और बहुत तलाश के बाद जो नौकरी उन्हें मिली वो पारसी बॉय स्कूल में जो अब्दुल्ला हातिम रोड की वाक़ है, वहाँ ड्राइंग मास्टर की नौकरी मिली। अब जाहिर है कि वो उसमें खुश तो नहीं हो सकते थे। रहने के लिए उन्होंने पीर इलाही बख्श कॉलोनी के एक 2 छोटे से कमरे के क्वार्टर में सुकूनत से इख्तियार की। जाहिर है कि वो जगह रहने के लिए कुछ आरामदेह तो ना थी और वो आए भी गर्मी के आगाज़ में थे। कराची की गर्मी खासी शदीद होती है, लेकिन इसके बावजूद कि उनके हालात इतने नासाजगार थे और वो अपने जो टीचरी थी ड्राइंग मास्टर की उससे बहुत नाखुश थे।
उसके बावजूद उनके आप मुतासर नहीं हुआ, वो बड़ी लगन से अपना पेंटिंग करते रहे। जल्द ही उनके दोस्तों ने उन्हें लाहौर जाकर किस्मत आजमाई करने पर आमादा कर लिया। लाहौर का माहौल हमेशा से फनकाराना मसाई के लिए साजगार है। उनके अहबाब का ये मशवरा गलत साबित नहीं हुआ। शाकिर अली कहा करते थे कि मेरी तख्लीकी सलाहियतों को फलने फूलने का मौका लाहौर आने के बाद ही मिला है। मैं लाहौर आया तो यहाँ मैंने अपने जैसे लोगों को पाया, काफ़ी हाउस में, पाकिया हाउस में और दूसरे कहवा खानों में। उसमें शायर भी थे, अफसाना निगार भी थे और नौजवान मुसव्विर भी थे। तो एक उनके साथ रिश्ता हुआ, उन्होंने मेरी बात समझी, मैंने उनकी बात समझी। वो यगानगत और बेगानगी जो हरचंद के यूरोप में बहुत दिन अरसे रहने के बाद मैंने यहाँ महसूस नहीं की। मैंने बहुत कुछ उनसे सीखा और कुछ थोड़ा बहुत मैंने उनको भी दिया। एक ऐसी जगह जहाँ न कोई बादशाह था न फकीर, न कोई छोटा था न बड़ा, जहाँ अदब, फन और इल्म के रिश्ते से एक दूसरे से मुलाकात होती है। उसको लोग ताकती हाउस कहते हैं और जब तक लाहौर हो उसे ताकती हाउस कहते रहेंगे। वहाँ तालिब इल्म भी आते थे, फनकार भी आते थे, गाने वाले भी आते थे, पेंटर्स भी आते थे। और पेंटर्स के आने की रस्म का आगाज शाकिर अली ने किया था। ये माहौल जो है ये दरअसल लाहौर का इंटेलेक्चुअल माहौल था। इंटेलेक्चुअल, आर्टिस्टिक, लिटरेरी, ये तमाम किस्म के लोग जो थे वो इस स्क्वायर में जमा होते थे। दिलचस्प बात है वो यही है कि ये लोग लिटरेरी और आर्टिस्टिक मसाइल से वाबस्ता थे और इनकी तमाम बातें जो थी वो महज गपशप नहीं थी, बल्कि सीरियस लिटरेरी, आर्टिस्टिक, एस्थेटिक डिस्कशन थी। वो ये आर्ट करते कि शाम के टाइम दोस्तों के मिलने का फ्री टाइम आया करते थे और चाय पीने के साथ साथ दोस्तों की गप्पें मारा करते थे। वो इतना टाइम होता था, कभी एक हाथ साइड मंगा ले, कभी उसके दूसरा मंगा ले, दूसरे के साथ दोस्तों के साथ, और बैठ के बातें करते रहते थे। और चीनी वैसे तो मसला ये था कि चीनी मैं अगर ज़्यादा आदमी कहते नहीं चीनी ज़्यादा की जरूरत है, हमें 1 चम्मच 1.5 चम्मच हम पीता हूँ। और बड़ी शक्कर साहब हमारे साथ गुफ्तगू करते थे। ऐसा लगता है कि उस वक्त हालात का रुख भी शाकिर अली के लिए कुछ साजगार था, क्योंकि उन्हीं दिनों लाहौर के म्यो स्कूल ऑफ आर्ट्स की नौइयत में तब्दीलियां रूनुमा होने लगी। म्यो स्कूल ऑफ आर्ट्स बरतानिया की नौआबादियाती हुकूमत के दौर में कारीगरों की एक दरसगाह की हैसियत से शुरू किया गया था, ताकि कारीगरों के रवायती फनून को खत्म होने से बचाया जा सके। ताहम क़याम पाकिस्तान के बाद इसकी नौइयत बदलने लगी और यहां बुलंद तर फनून की तदरीस भी शुरू हो गई और बिल आखिर 1958 में इसको नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स का नाम दे दिया गया। किताबों से पढ़ के स्टूडेंट्स के साथ सुबह शुरू किया, रात को 12 बजे तक काम करते रहे और हफ्तों चलता था ऐसे। उसमें कभी कोई हमें दिक्कत महसूस नहीं हुई। आपस में इस तरह काम करते थे जैसे हम फेलो स्टूडेंट्स हैं सारे, और बड़ी इज्जत थी। बच्चे बहुत हमारी इज्जत भी करते थे और हमारे साथ कोऑपरेट भी करते थे। और बस एक ख़ानदान था 60-70 लोगों का कि जो हर वक्त मिल के रहता था। नेशनल कॉलेज बनने के बाद शाकिर साहब की शख्सियत के थ्रू और कुछ सीनियर जो उनके कोलीग्स थे उनके थ्रू एक स्कोप इस जगह का जो था उसमें एक आफाकियत आई, एक इंटरनेशनलिज्म आया और ये इनोवेटिव क्वालिटीज़ और क्रिएटिव क्वालिटीज़ जो हैं उस ज़माने की शुरू हुई भी हैं और उस ज़माने की ट्रेडिशंस हैं जिसके ऊपर के कॉलेज आज भी प्रॉस्पर कर रहा है। लोग कम थे, लिहाजा उस्ताद से मेल मुलाकात और बातचीत करने के मौके ज़्यादा होते थे और इस हद तक कि उस्ताद किसी हद तक तालिब इल्म के शख्सी कैफियत से भी वाकिफ़ होता था और उनको समझ भी सकता था और उसके मुताबिक उनको हिदायत दे सकता था।
शाकिर अली ने 6 बरस तक मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स में तदरीसी फराइज अंजाम दिए और इसके बाद जब इसको कॉलेज का दर्जा दे दिया गया तो 3 बरस तक फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट में प्रोफेसर की हैसियत से काम किया। 1961 में वो नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के प्रिंसिपल मुकर्रर हुए और उन्होंने 12 बरस में इस कॉलेज को एक कौमी इदारे में तब्दील कर दिया और उसे वो मकाम अता किया जो आज तक कायम है। उनकी सबसे ज़्यादा तारीफ इसी बात की है कि बाज़ दफ़ा वो क्लास में आए, उन्हें काम पसंद नहीं आया फर्ज कीजिए, तो वो कभी क्लास में नहीं कहते थे कि मुझे पसंद नहीं आया। वहाँ सबकी स्टूडेंट्स की तारीफ हो रही है, टीचर्स की, हाँ भाई तुम ये कर लो वो कर लो, भाई ये ठीक नहीं है। कम बोलते थे बहुत, ये ठीक नहीं है, बस अब क्या ठीक नहीं है वो फिर टीचर आके उनसे डिस्कस करे, बात करे और वो समझाते थे और ये भी कहते थे कि देखो तुम्हारे अपनी टीचिंग में ये वीकनेसेस हैं, इसको दूर करो, लेकिन स्टूडेंट्स के सामने कभी नहीं कहते थे। क्योंकि शाकिर साहब का जो कम्युनिकेशन का तरीका था वो एक रिवायती उस्ताद का लेक्चर के ज़रिए और मार्क्स और डिविजन्स के ज़रिए से स्टूडेंट्स को जज करने की बजाय एक लाशऊरी किस्म की तदरीस एक जारी थी जो कि उनकी ज़ाती शख्सियत, उनकी प्रेजेंस से ही जनरेट होती थी, उनके काम को देख देख के, और एक वैल्यू सिस्टम डेवलप हो गया था जिसमें कि जो उनके इर्द गिर्द तलबा होते थे वो ग्लैमर के शौकीन नहीं थे, कमर्शियलिज्म उनके नज़दीक नहीं फटक सकता था। उसकी वजह ये कि उस्ताद की जो वैल्यूज़ होती हैं वो फिर अब्जॉर्ब हो जाती हैं उनके हल्का असर में जो कि उनके स्टूडेंट्स में था। पाकिस्तान में आजकल जो नुमाया फनकार हैं उनमें से ज्यादातर शाकिर अली के शागिर्द रह चुके हैं, लेकिन शाकिर अली अपने शागिर्दों और रुफ़क़ाए कार में कम ही फर्क किया करते थे। वैसे भी नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स क्योंकि मुल्क में अपनी नौइयत की वाहिद दरसगाह थी, इसलिए होता ये था कि बहुत से तालिब इल्म ग्रेजुएशन के फौरन बाद ही कॉलेज में पढ़ाना शुरू कर देते थे और शाकिर अली के रफीक कार बन जाते थे। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट में आया तो मेरी हैसियत एक मामूली उस्ताद की थी, लेकिन मेरी तवक्की थी, मेरी उम्मीद थी कि मैं एक फिजा पैदा करना चाहता था। दूसरी जो एक वो हमें एजुकेट करते थे वो अपना जो नया काम उनका होता था, जो लेटेस्ट काम वो करते थे, तो हम सुबह आकर देखते कि हमारे आने से पहले स्टूडियो में उनकी वो पेंटिंग्स लगी होती थी, तो उससे पूरा एक तो स्टूडियो का एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता था और हम सब लोग घंटों उस तस्वीर को देखते थे और उसे तो कोशिश करते थे कि इसी तरह हम भी कुछ पेंट करें। शाकिर अली बुनियादी तौर पर एक उस्ताद थे, चुनाचे प्रिंसिपल की हैसियत से इंतजामी फराइज की अदायगी को बोझ समझते थे। वो 1973 में कॉलेज से रिटायर हो गए, लेकिन इसके बावजूद अपने शागिर्दों और अपने कॉलेज से राब्ता कायम रखा और प्रोफेसर एमेरिटस की हैसियत से अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे तक काम करते रहे। उस्ताद बल्कि पढ़ने वाला, सोचने वाला, लिखने वाला या तस्वीर बनाने वाला कभी रिटायर नहीं होता, बल्कि वो एक नया एक वक्त से दूसरे वक्त में जाता है। शाकिर अली ने ज्यादा पेंटिंग्स विरसे में नहीं छोड़ी। इसकी वजह कुछ तो उनका मखसूस मिजाज था, कुछ ये कि उन्होंने अपने आप को तदरीस और नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स की तरक्की के लिए वक्फ कर रखा था, और कुछ ये कि वो हमेशा पैसे की कमी का शिकार रहते थे। उनकी बड़ी बड़ी काबिल जिक्र पेंटिंग्स की तादाद लगभग 50 है, लेकिन इसके बावजूद उनकी नुमाइश दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों बरतानिया, अमेरिका, ब्राजील, ईरान और इटली में हो चुकी है। मेरे ख्याल में एक बड़ी दिलचस्प चीज़ जो शाकिर साहब की तस्वीरों में शुरू से ही रही है वो ये कि रंग का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कॉन्शियस तरीके से किया करते थे। यानी उसका जो एक ज़ाहिरी रंग, चीज़ों के जो एक ज़ाहिरी रंग होता है वो नहीं था, एक अंदरूनी रंग जो कि जिनका उनकी उस चीज़ के अंदरूनी कैफियत से ताल्लुक़ था, वो रंग इस्तेमाल करते थे। मसलन उसके यहाँ मैंने एक बात और देखी जो एक हमारी स्लेट स्कूल वाले मसलन बाज़ औक़ात उसकी पेंटिंग पे एतराज़ करते थे कि भाई तुम्हारे यहाँ डर्टी कलर्स बड़े ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। डर्टी कलर से मुराद
स्याही ज्यादा ये, तो वो कहता था हाँ होते हैं, मैं इस तरह कह के वो टाल देता था। लेकिन बाद में मुझे ये एज ए साइकोलॉजिस्ट मैंने पूछा कि क्यों डर्टी कलर इस्तेमाल करता, तो मुझे ये एहसास हुआ कि ये कोई थर्ड वर्ल्ड की जो एक्सपीरियंस है ना उसको नहीं छोड़ सकता, कि थर्ड वर्ल्ड की जो है जो पहनाई है, जो उसकी गुर्बत है, जो उसका इफलास है, उसको इन कलर्स के जरिए बयान करता है। और वो हमेशा नीचे होते थे, ये नहीं कि ऊपर रहे, वो हमेशा ऊपर अगर दरख्त भी हैं, फूल हैं, ये है वो है, लेकिन डर्टी कलर जो है वो नीचे आएगा। तो तय में जो थर्ड वर्ल्ड थी वो उसके रहती थी कि गरीब दुनिया जो है वो दरअसल में हकीकत है हमारे लिए। मेरे ख्याल से वही चीज़ें आके आखिरी फेजेस में बहुत मैच्योर हो गई थी, उनके कॉम्पोजिशंस, उनके हैंडलिंग ऑफ कलर्स, और उनका और मैच्योर भी हो गई थी और ओरिएंटल हो गई थी कलर्स में। क्लाइमेटिक इफेक्ट आप देखते थे, जो मसलन इंग्लिस्तान वगैरह में दो एक पेंटिंग्स वो लेकर भी आए थे, ठंडे ठंडे रंग और जैसे वहाँ के क्लाइमेट है उसके लिहाज से था। लेकिन आखिरी पेंटिंग्स में आप देखें यहाँ पे के रेड्स एंड ब्लैक्स एंड वाइट्स, इतना क्लाइमेटिक इफेक्ट उस पर और लोकल कलर का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस उन पे हो गया था, जो कि बड़ी अच्छी बात है। इट शोज़ के आर्टिस्ट सेंसिटिव है अबाउट द इन्वायरमेंट एंड जिस माहौल में वो रह रहा है उसको क्या कर रहा है, अक्कासी कर रहा है उसकी। शाकिर अली की मुसव्विराना तख्लीकात के अलावा एक तख्लीक उनका घर है, जो खुद फन का एक अहम नमूना है। शुरू में जब यहाँ पे घर बनने लगा तो हमें पता लगा कि यहाँ पे कोई शाकिर साहब आए हैं, कोई नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के प्रिंसिपल थे, और वो हम छोटे थे, हमें इतना नहीं था पता, लेकिन इतना पता था कि वो कॉलेज जो है वो म्यूजियम के साथ वाला कॉलेज है। शुरू में घर बड़ी तेज़ी से बना, लेकिन जब प्रिंस लेवल तक आ गया उसके बाद एक घर रुक गया। हमने कहा पता नहीं क्या बात होगी, फिर हमें पता लगा कि जी उनके पास पैसे ख़त्म हो गए हैं, तो उसके बाद फिर ये काम रुक गया। कुछ साल के तकरीबन काम रुका रहा, उसके बाद फिर ये काम शुरू हुआ। तो होता अक्सर ये था कि महीने के फर्स्ट वीक में तो ये काम शुरू हो जाता था, उसके बाद बंद हो जाता था, और इन बिटवीन अगर एंड ऑफ द मंथ या मिडल ऑफ द मंथ भी काम शुरू हो जाता था, तो पता ये लगता था कि फर्स्ट वीक में तो तनख्वाह आ जाती थी, तो बाकी जो महीने में जो होता था उसमें उनकी कोई पेंटिंग बिकती थी, तो फिर वो काम शुरू होता था। इस मकान के डिजाइन और तामीर की कहानी एक आर्टिस्ट और एक इंसान की हैसियत से शाकिर अली का अक्स और पाकिस्तान में आर्ट के फरोग के लिए उनकी गरां कद्र खिदमात की दास्तान है। क्योंकि शाकिर साहब की शख्सियत इतनी मुख्तलिफ थी, उनकी रिक्वायरमेंट भी इतनी मुख्तलिफ थी, और उसमें से एक नहायत ही मुनफरद किस्म का एक डिज़ाइन जो है वो पैदा हुआ, जिसके नतीजे में कि ये घर बना जो कि अब म्यूजियम की शक्ल में मौजूद है। और जिस तरह वो पेंटिंग्स करते थे, इसी तरह इस मकान की तख्लीक भी उन्होंने इसी तरह करी। तो इसकी मुनफरिद चीज़ ये है, एक तो ये आम घरों से बिल्कुल हटके, दूसरे ये आम घरों से कुछ अंधेरा है, इसमें रोशनी कम है, क्योंकि शाकिर साहब का भी ये अंदाज़ा था कि यहाँ पे बहुत धूप पड़ती है और घर में सुकून होना चाहिए, तो इस घर में सुकून मौजूद है। और दूसरे इसमें टेक्सचरल क्वालिटी जो पेंटिंग्स में होती है, आम घर स्मूथ होते हैं, बाहर से ग्लैमरस होते हैं, ये घर रफ है और इसमें टेक्सचरल क्वालिटी है। इसमें लाल रंग के पुराने तर्ज के फर्श पड़े हुए हैं,
इसके अंदर भी खुरदरी दीवारें हैं, इसका निज़ाम वो सब का सब बिल्कुल मुख्तलिफ है। और इसमें जो इंस्पिरेशन शाकिर साहब के जहन में मुझे नज़र आती है वो एक तो फोक आर्ट से, फर्नीचर भी हमारे पुरानी चीज़ों से निकला हुआ है, लेकिन हमारी चीज़ों से निकला हुआ है। इसमें यूरोपियन चीज़ों से इंस्पायर होके भी शायद थोड़ा सा काम हो, लेकिन 90% जो चीज़ें हैं वो या स्वात से इंस्पायर हुई हैं, या बहरा के पुराने दरवाज़ों से, या और मुख्तलिफ जो भी हमारी ट्रेडिशंस हैं वहाँ से इंस्पायर होने के बाद, और मगर सब में बड़ी क्वालिटी इसकी जो है वो है स्पेस का इस्तेमाल। जगह जो है उसमें बह रही है, कमरे अलग अलग नहीं है, एक तरफ से शुरू होता है, मालूम नहीं कहाँ से शुरू होता है और कहाँ ख़त्म होता है, एक ही इसकी एक ही ख़ास क्वालिटी है। तो इसके अलावा इसका जो हुस्न है घर का वो इसकी स्पेसेस में और इसके टेक्सचर्स के अंदर है। ख़ास तौर पे आप देखिएगा कि दीवारें बहुत है, क्योंकि एक मुसव्विर को दीवारें चाहिए होती हैं तस्वीरें टांगने के लिए, तो फ़कत उस जगह पे जहाँ रोशनी चाहिए थी चंद खिड़कियाँ हैं, बाकी सब दीवारें ही दीवारें हैं, और इसी वजह से ये एक कामयाब म्यूज़ियम जो है बन सका। और बनने में 7-8 साल इसके इस वजह से लगे कि शाकिर साहब के पास पैसों की कमी होती थी, पैसे ख़त्म हो जाते थे, साल कंस्ट्रक्शन रुक जाती थी, तो आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन इसके बावजूद इसका जो कैरेक्टर है सारा का सारा, उसमें एक हम आहंगी है। ये नहीं है कि 8 साल बाद उनके ख्याल जो बदल गया हो तो कुछ इसका अगला हिस्सा जो 8 साल बाद बना है पहले हिस्से से फ़र्क हो। इस सब में एक ज़बरदस्त हम आहंगी है, बाहर भी और अंदर भी, ये इसकी एक ख़ास बात है। और अगर आप इसकी स्पेसेस को देखिए तो ये इसमें कुशादा ऊंची जगह भी मौजूद हैं, और इसमें इसी तरह से हॉरिजॉन्टल जगह जो हैं वो भी मौजूद हैं, और कोई महंगी चीज़ आपको इसमें नहीं नज़र आएगी। शाकिर साहब की ज़रूरियात इतनी मुख्तलिफ थी जिसकी वजह से ये घर इतनी मुख्तलिफ तरतीब के साथ बना है। ख़ासतौर पर रोशनी का जो इस्तेमाल है कहीं बिल्कुल ही नहीं है, और जहाँ है वहाँ फ़कत नॉर्थ से रोशनी ली गई है ताकि सुबह से शाम तक एक जैसी रोशनी आती है जो कि मुसव्वरी के लिए मुनासिब है। और इसी तर्ज के ऊपर जहाँ रोशनी की ज़रूरत नहीं है वहाँ उन्होंने बिल्कुल सॉलिड दीवारें जो हैं वो बनाई हैं। जैसा कि आप देखिएगा कि उस एरिया के अंदर बिल्कुल किसी किस्म की खिड़की वगैरह जो है वो नहीं दी गई है। अंदर के अलावा इस घर के बाहर शाकिर साहब ने बाहर का जो माहौल है उसको भी इसी तरह तरतीब दिया है जैसे कि अंदर का माहौल है, क्योंकि बाहर भी वो काम करते थे, और बाहर की जो चीज़ें हैं, जो लाइट्स हैं, जो बेंचेस हैं, उन सब में एक एम्बियंस, एक माहौल है जो कि शुरू से आखिर तक एक दूसरे के साथ तरतीब होता चला जाता है। दूसरी खास बात इस घर के आर्किटेक्चर के बारे में ये है कि इसकी जो एस्थेटिक्स डेवलप हुई है, जो आम लोगों के गालिबन शायद समझ में इतनी आसानी से ना आए, और गार्डन टाउन का बाकी सारा माहौल इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन जिन लोगों का फ़नून लतीफ़ा से ताल्लुक़ है या आर्टिस्ट लोग हैं वो आके यहाँ बहुत इंस्पायर होते हैं और बहुत एक्साइट होते हैं, क्योंकि यहाँ जो स्पेस की क्वालिटी है, स्पेस को स्कल्पचर की तरह यूज़ किया गया है। बहुत दफ़ा इख्तलाफ शाकिर साहब से हुआ, मसलन बाहर एक अजीब-ओ-गरीब सीढ़ी बनी हुई है, तो मैंने शाकिर साहब से कहा कि भाई ये सीढ़ी आप बनवा रहे हैं शाकिर साहब, ये कहाँ जा रही है? कहने लगे कहीं नहीं जा रही, मगर मुझे सीढ़ी चाहिए। तो हमने कहा जी सीढ़ी इस तरह तो नहीं बनाते, सीढ़ी तो चढ़ने के लिए बनाते हैं। तो कहने लगे नहीं भाई वो कुछ चीज़ें जो हैं वो मुझे अच्छी लगती हैं, अब तो वो रहट लगाना चाह रहे थे पीछे। मैंने कहा रहट का क्या काम है घर में पीछे? कहने लगे इससे ठंडक का एहसास होता है देखने से। तो वो तो मैं उनसे नहीं माना, रहट वहट नहीं लगवाया, मगर वो सीढ़ी जो मैंने बनाई उसका फिर मैंने एक इस्तेमाल ढूंढ लिया कि उस सीढ़ी से हम ऊपर सीधा टेरेस पे चले जाते हैं, और वो निहायत खूबसूरत सीढ़ी है जो बाहर वो एक पुरस्कार तरीके से वो सीढ़ी जो है वो जाती है। तो उस सीढ़ी का जो पुरस्कारपन है उस पर वो इतने खुश हुए कि उन्होंने सब में अपनी एक खूबसूरत बड़ी पेंटिंग जो है वो मुझे बतौर फीस या प्रेजेंट के उन्होंने उस दिन फिर मुझे दी। तो शाकिर अली साहब अपने कमरे में बैठे थे और ये तस्वीर बिल्कुल सामने रखी थी, तो मुझे बड़ी पसंद आई। थोड़ी सी देर के बाद मैंने कहा शाकिर साहब ये तस्वीर मैं लेनी चाहता हूँ। कहने लगे हाँ ले लें। तो मैंने कहा जी कितने दाम होंगे? तो कहने लगे आप बताएं। मैंने कहा जी मैंने कभी आज तक किसी तस्वीर की कीमत मैं नहीं डाल सका, तस्वीर की तो कोई कीमत नहीं होती। कहेंगे अच्छा तो फिर आप ऐसे करें, आपकी जेब में जितने पैसे हैं वो मुझे दे दें।
اب میں اس روز بینک سے کچھ پیسے لے کر آیا ہوا تھا، تو میں نے کہا شاکر صاحب میرے پاس آپ سوچ لیں، ہو سکتا ہے میرے پاس پیسے بہت کم ہوں. کہنے نہیں، ہم نے کہہ دیا جتنے ہیں وہ دے دیں. میں نے کہا پھر سوچ لیں، 3 دفعے کہا. تو کہنے لگے مجھے منظور ہے. اور میں نے نکالے تو 6,000 تو میں بینک سے لایا تھا، اور کچھ اور پیسے تھے وہ میں نے سارے ان کی ٹیبل پر رکھ دیے. تو کہہ لیں گے ڈن. میں نے کہا جی بہت اچھا، مجھے بھی منظور ہے. تو مجھے بات میں یہ خیال آیا کہ یہ اتنی جلدی میں یہ کیوں تھے. تو خیر یہ آئیڈیا رجسٹر ہوا اور میں بھول گیا اس بات کو. تصویر میں لے آیا، میں بہت خوش تھا. تو بعد میں یہ پتہ چلا کہ انہیں گھر کی چھت ڈالنے کے لیے اس وقت بہت پیسوں کی ضرورت تھی. شاکر علی مزاجن تنہائی پسند تھے. شاید 5 برس کی عمر میں والدہ کے انتقال کا ان کی شخصیت پر بہت گہرا نقش ثبت ہو گیا تھا. اگرچہ وہ تنہائی اور سکون حاصل کرنے کے لیے اکثر اوقات گھر میں اپنے رہنے کے کمروں کی کنڈیاں چڑھا لیا کرتے تھے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کام آمیز تھے. وہ زندگی سے بھرپور اور فعال دانشوروں کی صحبت سے بے حد لطف اندوز ہوتے تھے، اور شاعروں، ادیبوں اور فنکاروں کی قدیم آماج گاہ پاک ٹی ہاؤس میں اکثر نظر آیا کرتے تھے. تو ہمیں نئے مصوروں سے ملاقات کرتے ہوئے بالخصوص شاکر علی سے یہ احساس ہوا کہ جس طریقے سے مصوری میں ایک نیا تخلیقی جذبہ جاگ رہا ہے، اور یہ لوگ پچھلے مصوروں سے الگ ہیں جو اس زمانے کے بڑے مصور تھے. ہمارے یہاں چغتائی صاحب تھے اور لوگ تھے. تو اسی طریقے سے ہم بھی اپنے جو بڑے ہیں اور ہماری سینئر جو ہے نسل، ان سے ہم الگ ہیں. تو اس بنیاد پر ہم نے اور ان میں ایک عجیب اتحاد ہو گیا. تو ہم وہ جو منڈلی تھی جس میں کچھ نئے لکھنے والے تھے، ناصر کاظمی جیسے لوگ، اور کچھ مصور تھے، تو بہت چہکتے بولتے تھے، بڑی بحثیں کرتے تھے. ان میں خاموش آدمی ایک تھا، وہ شاکر صاحب تھے. اور مجھے اب بھی محفلوں کا جب خیال آتا ہے تو جس وقت تجریدی مصوری پر بڑے انٹلیکچوئل انداز میں، بڑے دانشورانہ انداز میں ہم دوست بحث کرتے تھے، تو شاکر صاحب ایسے منہ تکتے تھے بحث کرنے والوں کا جیسے کوئی بچہ، معصوم بچہ اپنے بڑوں کی باتیں سننے کی کوشش کر رہا ہو. دنیا کے تخلیقی ذہن رکھنے والے دوسرے عظیم لوگوں کی طرح شاکر علی بھی نوجوانوں کو بہت عزیز رکھتے تھے، اور ان کے گھر میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی ہاؤس گیسٹ کے طور پر مقیم نظر آتا تھا. بہت ہی معصوم آدمی تھے اصل میں شاکر صاحب. ایک دفعہ ان کے کوئی پرانے دوست تھے، وہ اپنے پوتے کو لے کے آئے. میں ان کے ساتھ ہی سونا آباد کے مکان میں رہتا تھا. تو آئے کہنے کہ لو شاکر یہ میرا پوتا ہے اور آج اس کا وہ ڈرائنگ ٹیسٹ ہے. تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا تمہیں بہت بڑے آرٹسٹ کے پاس لے جاتا ہوں اور وہ تمہیں مدد کریں گے تمہاری. تو کہنا ہاں بیٹے کیسے ہو تم، یہ پوچھا بچہ. وہ بولے یار اس کو ایک طوطے کی تصویر بنا دو، اس کو طوطے کی تصویر نہیں آتی، اور میں نے تمہارا بھائی اس کے اوپر وہ سکہ جمایا ہوا کہ تم بہت بڑے آرٹسٹ ہو رہی اور وہ، تو اب ذرا تصویر اچھی بنانا. تو بچے کو خود بنانی چاہیے تصویر، یہ آپ خراب کر رہے ہیں اس کو. میں نے نہیں ہار میں تم پھر وہی شروع ہو گئے، تم کو اس کی ایک تصویر بنا کے دینا ہے، اس نے لے جانا ہے وہاں. تو شاکر صاحب نے کہا اچھا. تو کاغذ اور پینسل لے کر کے انہوں نے طوطے کی تصویر بنائی. میں بیٹھا ہوا تھا تو بلا نکلا خدا خدا یہ بن گئی. تو کہ یہ طوطے کی تصویر ہے، یہ طوطا اس طرح کا ہوتا ہے، آپ کو تو طوطے کی تصویر بنانی نہیں آتی. شاکر علی دوسروں کی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے اور ان کی ضروریات کی کفالت کرنے کے سلسلے میں بہت حساس تھے. چنانچہ انہوں نے زندگی میں ہونہار مصوروں کی سرپرستی کی. فائنل ایئر میں چلے گئے تھے اور حالات بہت خراب تھے، تو انہیں پتا تھا کہ پیسے ویسے نہیں ہیں ان کے پاس. تو ان کے جو گیسٹ آتے تھے ان سے ملنے، تو وہ خاص طور پر اسٹوڈیو لے کے آتے تھے اور تصویریں ہماری دکھا کر کہتے تھے کہ بھائی یہ بہت اچھی تصویر ہے، یہ خرید لو. تو اس زمانے میں وہ پھر خود ہی، ہمیں نہیں پتا کہ کتنے وہ اپنے پاس سے وہ پیسے ہمیں دے جاتے، کہتے نہیں یہ تصویر انہیں دے دو، انہیں پسند آ گئی. وہ اکثر اپنے شاگردوں کو پینٹنگ کرنے کے لیے اپنے گھر بلا لیا کرتے تھے
और कहा करते थे कि तुम्हारी नौजवानी के असर से मेरे काम में भी ताजगी पैदा हो जाएगी। तस्वीर बनाते हुए मैं कुछ एक किसी टेक्सचर का या किसी खुशबू का या किसी जायके का एहसास बड़ी शिद्दत से होता था। चिड़िया भी जो थी वो शाकिर साहब के लिए एक बहुत अहमियत रखती थी, क्योंकि वो कहते थे कि मेरे अंदर एक चहचहाती हुई चिड़िया है जो बाहर निकलने की कोशिश कर रही है और गाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ज़िंदगी और जो एक हालात हैं वो चाहते हैं इस चिड़िया का गला घूंट दें और उसे चहचहाने का मौका ना दें। शाकिर अली ने अगरचे पाकिस्तान में फ़नून लतीफ़ा के शोबे में बहुत सी नई तकनीकी इख्तरात मुतारिफ कराई, लेकिन उन्होंने कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि वो अपने ख्यालात और तसव्वुरात मुसल्लत कर रहे हैं। किसी के काम पर तनकीद नहीं करते थे, किसी के भी। तो मसलन मैं एहसान दानिश का एक पोर्ट्रेट बना रहा हूँ और वक्त थोड़ा मिलता है, 2 जगह मिला दूंगा मैं अमेरिकी सेंटर में नवाज खुद 2-2.5 घंटे सोता हूँ, ये सब उनके सामने था। अच्छा, और वो दूसरे लोग उसको मेरे घर पड़ा रहता था, ईज़ल पर वो पोर्ट्रेट तस्वीर से बना रहा था। और अब मेरी ये भी जरूरत नहीं होती थी कि मैं उनसे कुछ पूछूं कैसा बन रहा क्या है, इसलिए कि निहात मुक्त होती मैं क्या पूछूं उनसे। तो अच्छा, आप ये भी जानता था कि ये एक तनकीद बिल्कुल किसी पर नहीं करते मैंने नहीं देखा तनकीद। तो जनाब एकदम कहने वाह क्या कहने साहब, बस मैंने उठा कर रख दिया कि हो गया काम। उसके बाद उसको नहीं छेड़ा। शाकिर अली खुद महसूस करते थे कि उन्होंने आर्ट की जो सबसे बड़ी खिदमत की है वो ये है कि उन्होंने एक ऐसा माहौल पैदा किया है जिसमें फनकारों की अपनी तख्लीकी सलाहियतों को भरपूर अंदाज में उभर कर सामने आने का मौका मिल गया। आर्ट के फलसफे के बारे में भी शाकिर अली के ख्यालात निहायत वाज़ेह थे। तस्वीरें देखते हैं तो सादगी बड़ी है कि उनकी तस्वीरों में कोई हंगामा, कोई क्लटर नहीं है। जो बात कहना चाहते हैं वो बड़ी सादगी से कहते हैं। तो इसको मद्देनजर रखते हुए, सारे बैकग्राउंड को रखते हुए हमें शाकिर की पर्सनालिटी को देखना है कि वो आदमी एक ऐसा इंसान था कि जिसने बहुत कम बातचीत की, बहुत कम दोस्त बनाए, बहुत कम इधर का उधर लोगों से मिला, सिर्फ अपने आप को उन चीज़ों से और उस लिटरेचर से, उस फ़लसफ़े से, उस हिस्ट्री से, उस विजुअल एक्सपीरियंस से अपने आप को एसोसिएट किया जिससे उनका सोचने का और देखने का कैनवस लार्ज होता था। और यही चीज़ है जो हमें, जो उनके एक तरह से फॉलोअर्स हैं और उनके एडमायरर्स हैं, हमें ये समझना ज़रूरी है कि आर्ट में सिर्फ आई और हैंड की ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, आर्ट में माइंड की ट्रेनिंग की ज़रूरत है, एक थिंकिंग आई की ज़रूरत है, एक थिंकिंग माइंड की ज़रूरत है, एक इंसाइजिंग परसेप्शन की ज़रूरत है, एक इवोकेटिव क्रिएटिव फैकल्टीज़ को डेवलप करने की ज़रूरत है। और उसी के कल्चर करने के बाद इस मुल्क में अच्छे आर्टिस्ट पैदा होंगे। दौरे हाजिर के एक कदावर आर्टिस्ट, एक महबूब और काबिल एहतराम उस्ताद और आर्ट के मुखलिस सरपरस्त शाकिर अली ने आज़ादी के बाद के पाकिस्तान में फ़नून लतीफ़ा के फ़रोग़ पर मोजज़ाना असर डाला। वो 1975 में इंतकाल कर गए। हकीकत तो ये है कि वो आज भी जिंदा हैं, उन शागिर्दों के रूप में जिनकी उन्होंने तरबियत और रहनुमाई की, और उन इदारों की शक्ल में जिनकी उन्होंने बुनियाद रखी और जिन्हें अजमत अता की। मैं कहता हूँ कि ये मेरा मकान, मेरे स्टूडियो हर वक्त उनके वास्ते हाजिर है, वो आके मेरे साथ काम कर सके। और मैं चाहता हूँ कि मैं उनके साथ मिलकर उनकी जवानी से अपने आप में एक नई ताजगी पैदा करूँ और उनके नए ख्याल से भी अपने आप को, अगर मैं कोई बता सकता हूँ तो बताऊँ, और उनके साथ साथ कि मैं उनसे सीख सकता हूँ तो मैं सीखूँ।